हाँ, तो in this ये जो today I'm going to explain about the cone. In this, what is the meaning of the cone? Generally, you have seen everywhere the cone, like ice cream cone. देखा होगा ice cream cone. And so many, the cap, birthday cap is also the type of cone. There are so many examples that you can see everywhere. तो cone है ये actually. When we cut the cylinder in such a way, जैसे ये, this is the cylinder, this one, and if we cut this cylinder like this from the middle and this one, can you see how many cones are there? There are 3 cones in the figure. This is the shape of the cone. This cone, this cone, this cone. These are the cones. क्योंकि ये एक सर्कुलर 3D फिगर है, तो इसलिए अभी तुमको ये फ्लैट दिखाई दे रहा है, but it is not the flat. This is the like this. So in that case we have the 3 figures, 3 cones in one cylinder. अगर उसको काटते हैं बीच से तो this is the shape of the cone. अब सिलेंडर से यदि हमें कोन मिल गई है तो उनके फार्मूले जो हैं और वही चीजें हैं जिनको हम बताने जा रहे हैं. And especially the figure of the cone, the same figure, only the separately I'm making this. This is the cone and you have seen the cone. And then this line and this line, OAB. OA is the height of the cone. This is the height, OA, from center to the vertex. This is called vertex. And this is the center of that जो cone का circular part होता है, that center, the center of the circular part is the you can say the also the center of the cone. This is the height, and from this center to this point, this is the radius of the cone. मतलब इसमें भी तुम्हें 2 ही चीजें मिल रही हैं, रेडियस एंड हाइट, बट वन मोर टर्म इज एडेड इन द कोन, एक्स्ट्रा टर्म, जो कि सिलेंडर में नहीं था. तुम देख रहे होगे कि इसकी ये ऐसे है, इसका मतलब ये स्लैंट है. इस हाइट को कहते हैं स्लैंट हाइट. दिस इज द वर्टिकल हाइट एंड दिस हाइट इज नोन एज द स्लैंट हाइट, और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, slant height, and this represented by the small l. अगर हम इसकी बात करें, ये this and this and this in this figure, तो this makes the 90 degree, and the relation amongst R, L and H will be in triangle OAB, L square is equal to R square plus H square. This is the relation by using the Pythagoras theorem. तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम रिलेशन निकाल सकते हैं. फर्स्ट रिलेशन मतलब you can find if anything is not given, तो 2 things are given, तुमको थर्ड वाली कोई चीज निकाल सकते हो. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, तो स्लैंट हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है, तो हाइट निकाल सकते हैं. मतलब एनी वन यू कैन गेट. देन वॉल्यूम ऑफ दिस, अभी जैसे बताया, I told this is in the cylinder there are the 3 cones. It means the volume of cylinder divided in 3 parts. So what is the volume of the cone? Volume of cone is equal to 1/3 volume of cylinder, that is pi r square h. तो ये हो जाएगा pi r square h. This is the volume of cone. 1/3 जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है. तो दैट यू कैन लर्न. देन लाइक सिलेंडर देयर आर आल्सो द 2 टाइप्स ऑफ सरफेसेस, कर्व्ड सरफेस एंड द टोटल सरफेस. जब हम ऊपर वाला ये पार्ट भी इंक्लूड कर देते हैं तो पहले कर्व्ड सरफेस. अब कर्व्ड सरफेस में तुमको क्या दिख रहा है? ये स्लैंट हाइट दिख रही है.
तो स्लैंट हाइट को लेकर के कर्व सरफेस मिलता है। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब हुआ कि अगर कहीं ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज द कर्व सरफेस यूजिंग स्लैंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया इट विल बी the area of this part, circular part, and plus area of the curved surface. तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें फिलहाल तुम्हारा ये है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, volume of the cone and the relation between the slant height, radius and height. So these are the things that you will study in this. Frustum is not included. Frustum का मतलब क्या है? Frustum क्या चीज होती है कि जब हम इस कोन को यहाँ से कट कर दें ऐसे इस तरीके, तो ये एक शेप में आ जाता है, बाल्टी शेप में। अगर हम इसको हटा दें तो ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट एक बाल्टी देखा अगर उस शेप में है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रस्ट्रम। तो फ्रस्ट्रम इंक्लूडेड नहीं है, यानी बीच में नहीं होगा तुम्हारा कहीं कुछ। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चन हम एक दो इसमें बता रहे हैं, जिसको इसको समझ गए, लिख लिए। नाउ क्वेश्चंस आर द डायरेक्ट बेस्ड ऑन क्वेश्चन। एक्सरसाइज 17.2, जैसे डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस? 10.5 by 2, यानी कि अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, डिवाइड करने की, यू कैन लीव योर, क्योंकि अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा। एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया CSA, दैट इज पाई आर एल। तो 22 by 7, R is 10.5 by 2 and L is 10। तो 7 से इसको कट करें, 7 1 और 7 5, 2 5, 22 into 5, 110 into 1.5, and then 165 centimeter square. This is the curved surface area. But simple example, simple formula, that is nothing. और जितना सिलेंडर में किया है, जितने फॉर्मूले, वो भी यूज हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मान लीजिए ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। एक कोनिकल टिप पिट है, मतलब गड्ढा खोदा गया है, पिट, उसका जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर है। तो R is equal to 2R is equal to 3.5 मीटर। तो R is equal to 3.5 by 2 मीटर। And the height is 12 मीटर, मतलब डीप मतलब उसकी गहराई जो है 12 मीटर। तो height is 12 मीटर। Find what is the capacity in kiloliters। तुम्हें कैपेसिटी निकालनी है। तो कैपेसिटी निकालने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम निकालना है। तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड पुट द वैल्यू 1/3, 22 by 7, R means 3.5 by 2, 3.5 by 2 R square, and pi R square h, h means 12, and then simplify this, 7 5 3 4 12, पूरा करिए
22 into 0.5, 11 into 3.5. So this will be 38.5 meter cube. तो this is the volume of the that pit. जो ये वॉल्यूम है इनमें मतलब इस तरह से वॉल्यूम निकाला जा सकता है और किलोलीटर्स में है तो यू कैन चेंज इन द किलोलीटर्स आल्सो. बट व्हाट इज द डिफिकल्टी, मतलब क्या डिफिकल्टी हो सकती है कभी कभी क्वेश्चन को निकालने के लिए. ज़रूरत पड़ती है सिर्फ फार्मूले की कि फार्मूला कैसे हम मतलब कि फार्मूले को एप्लीकेशन क्या होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में फार्मूलों को मतलब दूसरी तरीके से करके किया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 13, एक 13 क्वेश्चन है उसको देखिए. फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवास 2 मीटर इन विड्थ is required to make a conical tent. Canvas the type of cloth, एक क्लॉथ का मतलब किसी वो होती है लेंथ है, उसका विड्थ दे रखा है 2 मीटर. अच्छा, जब कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं मतलब कि कहीं पे पैंट का शर्ट का तो कैसे देता है, विड्थ से देता है कि लेंथ से देता है? स्पेशली लेंथ से देता है क्योंकि लेंथ नापता है 1 मीटर 2 मीटर इस तरीके से. इन्होंने विड्थ दे रखी है 2 मीटर. ओके, उस कैनवास is required to make the conical tent 20 meter in diameter and 42 meter in slant height. 20 meter in diameter मतलब अगर हम conical tent ऐसे बनेगा in this way and this is the 20 meter diameter, ये पूरा 20 मीटर का डायमीटर है तो यू कैन से द 20 मीटर and r is equal to 10 meter and slant height means this height is given 42 meter. So this is 42 meter and width of the canvas is 2 meter. Width of canvas सबका सरफेस एरिया लगेगा. तो विड्थ ऑफ कैनवास इज 2 मीटर. अब इसको अगर हम लेंथ मान लें, लेंथ ऑफ द कैनवास, लेंथ ऑफ कैनवास इसको हम x मीटर मान लें. लेंथ ऑफ कैनवास इज x मीटर एंड allowing 10% फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग. मतलब जब टेंट बनेगा कपड़े का तो क्या करते हैं कि मतलब कि कभी ये जैसे स्टिच करना होता है ना नीचे से, तो फोल्डिंग और भाई ऐसे तो लटका नहीं देंगे तो उसको स्टिच करेंगे बनाने के लिए, तो फोल्डिंग और स्टिचिंग के लिए 10% चाहिए. तो वो जो कपड़ा है वो अंदर चला जाता है. अब हमको क्या करना है कि फाइंड द also find the cost of the canvas at the rate of ₹80 per meter. पहले तो लेंथ निकालनी है, उसके बाद कितना कपड़ा लगा उसकी कॉस्ट निकालनी है. अगर 1 मीटर की कॉस्ट 80 रुपीज है तो जितने मीटर लगा हो उसकी कॉस्ट. सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है जब तुम इमेजिन करो कोनिकल टेंट को तो कुछ ऐसे बनेगा और सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही कपड़े में रहेगा, नीचे के लिए कुछ नहीं बोला है फ्लोर के लिए. तो इसका मतलब फ्लोर एक मतलब फ्लोर है दैट इज सिंपल फ्लोर, उसमें कपड़ा नहीं लगा हुआ है. तो हम सिर्फ क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल वैल्यू रख दें. This is the curved surface area, but asking 10% for folding and stitching, यानी हम 10% और निकाल करके इसी में ऐड करें क्योंकि वो तो स्टिचिंग और फोल्डिंग के लिए ही कह रहे हैं. तो
So total curved surface area of canvas will be 1320 plus 10% of 1320. अब इसको निकालो और बताओ कि how much it comes. 132 ऐड करो तो the total वन 452 मीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल कैनवास. अब पहले लेंथ निकालें. अच्छा ये कैनवास ही तो है, तो जो कपड़ा यूज हुआ है कोनिकल टेंट बनाने में, अगर हम उसका एरिया ले लें, कैनवास का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, बिकॉज इट इज इन रेक्टेंगुलर शेप, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर लें तो क्या आएगा? द एरिया ऑफ द कैनवास इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बोथ आर द इक्वल. So according to question, area of is equal to curved surface area of tent. So x into l into b होता है. 2 meter was the width of the canvas. तो L into B is equal to CSA 1452. तो X is equal to 726 meter. This is the length of the canvas. And after getting the length of the canvas, you can multiply by rupees 80. So cost of canvas rupees 80 into 726. क्योंकि भाई 1 मीटर की लेंथ रुपीज 80 है, तो 726 मीटर की लेंथ क्या हो जाएगी? 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 6 48. ₹58,080. दिस इज द लेंथ ऑफ द कैनवास. तो इतना मतलब कि किया जा सकता है इस तरीके से, और तुमको बढ़िया से मिल भी जाएगा. So that is the rule to find the questions on the this part, you can say the cone. कहीं पे पाई की वैल्यू तुम्हें 3.14 रखनी है, तो जो दी गई हो that you have to put in the question, चाहे वो सिलेंडर हो और कोन, कहीं पे the value is given 3.14, put the 3 point, otherwise 22/7. ये जैसे 17 क्वेश्चन 17 इज नॉट इन योर कोर्स, क्योंकि ये फ्रस्ट्रम बना रहा है, तो 17 नहीं है तुम्हारे उसमें, क्योंकि इसमें फिर कुछ और भी लगने लगेगा. जहां पे कोई कोन को बीच से कहीं से कट किया जाता है पैरेलल टू इट्स बेस, तो उस केस में वो फ्रस्ट्रम बनाता है, और फ्रस्ट्रम इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. और सेमी सर्कुलर लेमिना रेडियस 35 सेंटीमीटर फोल्डेड टू दैट द टू बाउंडिंग रेडियाई ऑफ द ज्वाइन टुगेदर. कोई एक सेमी सर्कुलर मतलब कि इस तरीके से हो, and you have to this frame in the form of, इसको फोल्ड करना है in the form of the cone. तो can you frame सेमी सर्कुलर लेमिना को अगर हम फ्रेम करें कोन के फॉर्म में, तो कर सकते हैं. और ये जब करने पे, हाँ, इसको करने पे जो हमारे पास में फिगर आएगा, मतलब कोन का फिगर आएगा, उसका उन्होंने रेडियस पूछा है और लैटरल सरफेस एरिया पूछा है. तो रेडियस भी निकाला जा सकता है, जैसे एक हमने फिगर सिलेंडर वाला बताया था रैप करके कि वो हाइट के और सरकमफेरेंस बन जाता है, इसी तरह इसमें भी है. तो तुम लोग इसको करना, कोई मतलब एक टाइप से अगर तुम मतलब कि एक वो लेके चलो एक पेपर को इस तरह सेमी सर्कुलर उसमें काट करके उसके बाद मोड़ के देखो कि क्या होता है प्रैक्टिकली.
कि कौन सा पार्ट ऊपर जाता है, कौन सा पार्ट सरकमफेरेंस बनता है, तो तुम्हें बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो इस तरह से ये है। और क्या कहते हैं, और भी क्वेश्चंस तुम अगर पूछ सकते हो तो पूछ लो, अदरवाइज ये जो चैप्टर, अच्छा स्फीयर इज नॉट इन योर कोर्स इन दिस ईयर, तो स्फीयर को हटा देते हैं। एंड देयर आफ्टर द recosting and melting and recosting into another solid, तो only from cylinder to cone or cone to cylinder, and also maybe cube and cuboid, but not including the sphere. स्फीयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो मेल्टिंग में हो चाहे जहाँ पे हो, वो अब नहीं आएंगे। और जितना हमें दिखाई दे रहा है जैसे सिलेंडर से कोन में है, वो ज़रूर करना है। 17.4 में तुम्हें दिखाई देगा कि इफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेंडर, 17.4 नहीं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, ये 17.5। 17.5 में इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद कोन एंड सिलेंडर, वैसे भी पता चल गया कि कितने सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर का फॉर्मूला और कोन का फॉर्मूला। इफ सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव द सिलेंडर, सम छोटे बड़ा सा सिलेंडर है और उसको हमने मेल्ट करके नंबर ऑफ छोटे छोटे कोन्स में बनाया, जिसका डायमीटर और रेडियस सब कुछ दिया गया है, वही बता रहे हैं। द सेम थिंग इज टेलिंग दैट विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन यू हैव इन द कोर्स। तो अगर बड़ा सा सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे कोन्स में डिवाइड किया, मतलब बनाया गया, तो हाउ मेनी कोन्स कैन बी फॉर्म्ड। तो हाउ मेनी कोन्स कैन बी फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, दैट इज द फॉर्मूला। तो नंबर कभी भी पूछा जाए तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है, लेकिन बड़े वाले का वॉल्यूम, जो बड़ा फिगर है, मतलब जिसको मेल्ट किया जा रहा है, उसे ऊपर रखना है, और जिसको बनाया जा रहा है उसके एक नंबर को के वॉल्यूम को नीचे रखना है, यानी डिवाइड करना है उसी से। तो दैट इज द मेथड टू फाइंड द नंबर ऑफ। ओके, तो इस तरह से ये मतलब कर सकते हो जो मिले क्वेश्चंस, अदरवाइज भी देखेंगे। ठीक, हमारे ख्याल से अब कंप्लीट है। ओके, अब इसके बाद में बताते हैं।